My precious children of God, I welcome all of you to this program and greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मसीह में मेरे प्रियजनों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और अभिवादन करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। There are 9 fruits of the Holy Spirit which we read about it in Galatians chapter 5 verses 22 and 23. और 9 फल हैं पवित्र आत्मा के जो हम गलातियों उसके 5, उसके 22 और 23 में पढ़ते हैं। Today we are going to see the 6th fruit of the Holy Spirit, goodness. और आज जो है हम छठा फल जो भलाई है उसके बारे में देखेंगे। When we can be filled with this fruit of the Holy Spirit? हम कब भरे जा सकते हैं इस फल पवित्र आत्मा से? It doesn't come to each and everyone. ये हर एक जन के पास नहीं आता। Those who want to have the fullness of the power of God and the presence of God all the time, only such people will receive this gift. और जो हमेशा परमेश्वर की भरपूरी और परमेश्वर की सामर्थ को हमेशा चाहते हैं वो इस तोहफे को पाते हैं। In this world, every day we have to seek the presence of God. और इस संसार में हर दिन जो है हमें परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। To have the presence of God, what we have to do? अब परमेश्वर की उपस्थिति पाने के लिए हमें क्या करना है? We have to read the word of God. हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है And spend time in prayer. और प्रार्थना में समय को बिताना है। We have to talk to God and speak to Him every हमें time. परमेश्वर से बातचीत करनी है और हर समय उनसे बातचीत करनी है। Then only we will be united with Him. और तभी हम परमेश्वर के साथ जुड़ने पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Lord Jesus will be pleased with us and He will be with us all the time. परमेश्वर यीशु मसीह हमसे प्रसन्न रहेंगे और हमारे साथ सर्वदा Then we रहेंगे। can feel the presence of God also all the time. और तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा अपने साथ महसूस करने पाएंगे। That is the true Christian life. और वही है सही मसीह जीवन। Nowadays people are cheating themselves by not reading the word of God, not speaking to the Lord, not spending with the presence of God, not seeking the Lord themselves. They say, I am a Christian. और आजकल जो है लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के प्रार्थना में नहीं रहते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते और अपने आप को मसीही कहते हैं। My precious friends, I beg of you to spend time with the Lord. मेरे प्रियजनों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि परमेश्वर के साथ समय बिताएं। Early morning is the best time to seek the Lord. प्रातः सुबह का समय जो होता है वो सबसे अच्छा समय होता है परमेश्वर के साथ The Lord in बिताने His grace taught me to get up at 4:30 and to speak to Him and to read His word and to spend in His presence. का। और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में मुझे सिखाया कि मैं 4:30 बजे प्रातः उठूं और परमेश्वर का वचन पढूं और उसकी उपस्थिति में रहूं। Do the same thing. ऐसा ही करो। After 6 or 7 people will be coming and you'll have lot of noises and disturbances. 6 और 7 बजे के बाद लोग आएंगे और काफी सारा शोर शराबा होगा। You can feel the presence of God in a different way. आप परमेश्वर की उपस्थिति को बिल्कुल ही अलग तरीके से महसूस करने पाएंगे। Likewise, when we seek Him with all our hearts, with all our mind, automatically we can see the presence of God. और जब हम परमेश्वर को खोजेंगे अपने पूरे हृदय, अपने पूरे दिल और मन के साथ, तो हम अपने आप से परमेश्वर की उपस्थिति को पाएंगे। The Lord will be pleased to be with us. और परमेश्वर प्रसन्न होंगे हमारे साथ होने में। You can hear His voice. आप उनकी आवाज को सुनने He'll पाएंगे। guide us and lead us for every single thing. वो हमारी अगुवाई करेंगे और हमें हर छोटी चीज में हमारी When I अगुवाई lost my करेंगे। husband, I was so unhappy. जब मैंने अपने पति को खो दिया था, मैं बहुत ही उदास थी। I never knew what to do. मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं। That time, the Holy Spirit, as a man, as a woman, He talked to me. और उस वक्त पवित्र आत्मा ने एक आदमी, एक औरत की तरह मुझसे बातचीत करी And instructed me to do this, to do that. और मेरी अगुवाई करी, मुझे ऐसा करना चाहिए और वैसा करना Through that, I चाहिए। was strengthened in the Lord. और उसकी वजह से मैं परमेश्वर में बलवंत होने पाई। The one who was crying all the time stopped crying and looked upon the face of Jesus. और वो जो हमेशा रोती रहती थी, अब उसने रोना बंद कर दिया और यीशु मसीह के चेहरे की ओर देखने लगी। Do the same thing every day. हर दिन ऐसा ही करो। Unless we seek Him like that, we cannot receive any blessings from the Lord. और जब तक हम परमेश्वर को ऐसे नहीं खोजेंगे, हम परमेश्वर से कोई आशीष नहीं पाने पाएंगे।
Especially if you want to receive the spiritual gifts, spiritual fruits of the Holy Spirit, you have to spend as much time as possible in the presence of God. अगर आप आत्मिक तोहफे, आत्मिक आशीषें परमेश्वर से चाहते हैं तो ऐसा ही समय आपको परमेश्वर के साथ बिताना पड़ेगा। If we seek Him like that, what will happen? अगर हम परमेश्वर को ऐसे खोजेंगे तो क्या The होगा? life of Lord Jesus Christ is a perfect example to all of us. और परमेश्वर यीशु मसीह का जो जीवन है वो हमारे लिए एक सिद्ध उदाहरण है। What did He do to receive all God's abundant blessings? उन्होंने क्या किया कि वो परमेश्वर की बहुतायत से आशीष पा पाए? If you read Acts 10:38, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 10 और 38 को पढ़ते हैं, there we read like this. वहां हम ऐसा पढ़ते हैं, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Then He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। In the same way, if we read the life of disciples also, they were also filled with the power of God before they were used mightily for the glory of God. और इसी तरह अगर हम चेलों के जीवन को देखते हैं तो वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा भरे गए थे इससे पहले कि वो परमेश्वर के महान काम में इस्तेमाल किए गए। In the book of Acts of the Apostles, 2nd chapter, if you read, all about how they were close to Jesus Christ and how God Almighty used them also for the power of God. और अगर हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं कि वो कैसे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ कितने नजदीकी में थे, Used them also for the glory of God. और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उन्हें कैसे इस्तेमाल किया। When John and Peter received the power of God, that we read in the 2nd chapter of Acts of the Apostles, और जब यूहन्ना और पतरस ने जो पवित्र आत्मा को पाया, जो हम दूसरे अध्याय प्रेरितों के काम में देखते हैं, and in the next chapter, that is Acts of the Apostles 3rd chapter, और तीसरे अध्याय में जो हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, how the goodness of God was revealed through them to a lame man. और कैसे जो है परमेश्वर की भलाई जो है एक लंगड़े व्यक्ति के द्वारा सब तक पहुंची He गई was थी। nearly 40 years old. वो 40 साल का था लगभग, Even from his birth, he was a lame man. और जब की वो जो था अपने जन्म से ही वो He was व्यक्ति जो just था लंगड़ा begging था, the people for money. और वो जो है लोगों से भीख मांग रहा था पैसों के लिए। So he all the time begging the people, and he has to fill his life with that money only. और हर वक्त जो है वो ऐसे ही भीख मांगता रहता था और उसे जो है ऐसे ही अपने जीवन में अपना पैसा कमाना था। The Lord took these people, John and Peter, after receiving the power of God, to this man. यूहन्ना और पतरस को जब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को पा लिया, इस व्यक्ति के पास ले गए। And when they saw that man, the power of God filled their lives. और जब उन्होंने इस व्यक्ति को देखा तो परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में भर गई। And through the love which came out of their mouth and out of their life through the power of God, healed that man. और वो जो प्रेम जो उनके मुंह से निकला उस वक्त परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उस व्यक्ति को चंगाई मिली। Through the Holy Spirit, he was delivered completely. और पवित्र आत्मा की वजह से वो एकदम छुटकारा पा गया। Hallelujah. हालेलुया। Yes, my friends, when you are filled with the power of God, the goodness of God, the beautiful fruit of the Spirit will work through you. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाएंगे तो उसके फल जो हैं वो आपके द्वारा काम करेंगे। People are crying and suffering because of various problems in their lives, will receive blessings from God. और वो लोग जो हैं वो रो रहे हैं, इतने सताव में हैं, वो सब परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। That's why we should receive this great gifts, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इन तोहफों को पाएं, rather fruits of the Holy Spirit. यानी कि जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के फल हैं। If you read 1 John chapter 4 verse 17, अगर आप पहला यूहन्ना उसका 4 और 17 को पढ़ेंगे, that verse says, as he is, so are we in this world. वो आयत कहती है क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। And
The Lord was filled with His goodness and He was used mightily to deliver so many thousands and thousands of people. परमेश्वर जो है उनकी भलाई से भरे हुए थे ताकि वो छुटकारा देने पाए हजारों और हजारों लोगों So को। we will also wait at the feet of God and receive the power of God. हम भी परमेश्वर के चरणों में इंतजार करेंगे और उनकी सामर्थ को पाएंगे। Unless you are filled with the power of God, the Holy Spirit, without measure, you cannot be used like that. और जब तक आप जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ से नहीं भरे जाएंगे, आप ऐसे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। So the word of God says, ask and it shall be given. परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Luke 11:13 also says the same thing. लूका 11:13 में भी ऐसा ही लिखा है, Ask and it shall be given to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। God has no partiality. परमेश्वर कोई तरफदारी नहीं करते। Ephesians 6:9, इफिसियों उसका 6:9, Deuteronomy 10:17, व्यवस्था विवरण उसका 10 और 17, Acts 10:34, प्रेरितों के काम 10:34 and Galatians 3:6. और गलातियों उसके 3 और 6। In all these verses we see that God has no partiality. इन सब आयतों में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहीं कोई तरफदारी नहीं करते। And how we will be used when you are filled with this fruit of the Holy Spirit goodness? और जब हम परमेश्वर के इस पवित्र आत्मा फल भलाई से भर जाएंगे तो परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल करेंगे? As Peter and John were used mightily when they saw that man who needed the Holy Spirit. अब जैसे पतरस और यूहन्ना जो है बहुतायत से इस्तेमाल किए गए जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जिसे पवित्र आत्मा की जरूरत थी। This divine fruit of the Holy Spirit flowed from their lives. और ये जो आत्मिक फल है पवित्र आत्मा का वो उनके जीवन से बहने लगा। And gift of the Holy Spirit started moving. परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो तोहफा है वो उनमें आगे बढ़ने लगा। Both joined together filled that man's life. और दोनों ने मिलकर जो है उस व्यक्ति के जीवन को भर दिया। And through that he got relief. और उसकी वजह से जो है उसे छुटकारा मिला, आराम मिला, Complete deliverance. पूर्ण छुटकारा। 40 years he was a lame man. 40 साल तक वो एक लंगड़ा व्यक्ति था। But now because of the goodness of the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit, he jumped up and he was delivered completely. और लेकिन अब परमेश्वर पवित्र आत्मा की भलाई से और परमेश्वर पवित्र आत्मा के अनुग्रह से वो उछल पड़ा। Yes, my friends, you can also be used like that. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आप भी ऐसे इस्तेमाल किए जा सकते हो। First we have to be filled with the power of God. सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है। And at the right time, this fruit, goodness will be seen in you. और सही समय पर वो भलाई का फल जो है वो तुम्हारे अंदर दिखाई देने लगेगा। May the Lord help you to receive this goodness, the gift, and shine for the glory of God. परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे कि आप इस भलाई के तोहफे को पाने पाएं और परमेश्वर के लिए चमकें।